Okay, guys, so we start with some graphs of basic functions. In last class, we were talking about this topic. So let's start. I think the slide is visible to everyone. Yes, Yes, sir. sir. Yes, good. Yes, sir. ठीक है. Okay, so we start with this first function, which is the simple one. Fx is equal to x, and you can see that x is independent variable here and y is dependent variable here. So domain will be the values of x at which the function is defined, at which the value of y is defined. And the values of y corresponding to the values of x will be the range of this function. So if you draw the function, कोई भी function आप draw करते हो, कोई भी टू डायमेंशनल कर्व आप draw करते हो, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है ड्रॉ करने का? उसका क्राइटेरिया सिंपल ये रहता है कि we just choose the values of x, put that values of x in the function and get the corresponding values of y. और हम क्या करते हैं फिर x और y की जो वैल्यूज़ आती है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बना लेते हैं x, y. ये पॉइंट्स हम बना लेते हैं और इन पॉइंट्स को हम एक्स वाई डायमेंशनल स्पेस पे ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाते हैं और हमारा कर्व ड्रॉ हो जाता है. लेकिन पहले इस कर्व की बात कर लेते हैं. इस कर्व को अगर हम देखें, सो देर आर सर्टन पॉइंट्स. For example, if you are taking x is equal to -2, we will get y is equal to -2. For x is equal to -1, y is equal to -1, and so on. So these are some points which we are taking for drawing this curve. This is the table. मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी जानते हैं. तो देखिए, जब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. आप देख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट इज -2, -2. So this is -2 and this is -2. So the point is sorry, this is -2, this is -2. So the point is here like this, like -1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, and so on. So if you join these all points, you will get a straight line passing through origin. So y is equal to x is a straight line passing through origin. In general, you can say y is equal to mx is the family of straight lines passing through origin. Family of straight lines passing through origin. Why we are calling this family? Because m is arbitrary constant. This m is arbitrary constant, and for different values of m, we will get the different values of y is equal to mx. सर माइक से आवाज आ रहा है सर. माइक से किसी का आवाज आ रहा है. Yes, sir. Please, ज्ञानेंद्र please sorry, sir. turn on, please mute yourself. Thank Everybody, please mute yourself. Yes. So m is arbitrary constant here. For different values of m, we will get different values of y is equal to mx, or we will get different values of different curves which are passing through origin. These all are straight lines. So you can choose any value of m, you will get a straight line passing through origin. That's why this is called family of straight lines passing through origin. Okay. Now, what is m? M is arbitrary constant, and in general, what is m? Can anybody please tell me? Slope, Yes. Slope. sir. Tan Slope Slope, of the theta. curve. Yes, yes. slope, tan sir. theta, sir. Slope of tangent is Slope, slope of tangent.
of curve. Right? Now come to the domain of this function. देखिए मैंने अभी आपको बताया डोमेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की या x की वो वैल्यूज़ होती है जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है. तो कोई मुझे बताएगा कि x की कौन सी वैल्यूज़ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है. सभी वैल्यूज पे Sir, any डिफाइंड. value outside the domain. नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं. ऐसी कोई x की वैल्यू जो है मतलब जिस जो पर फंक्शन पॉइंट्स डिफाइंड नहीं है. जो पॉइंट्स लाइन नो के सर, ऊपर लाइन के ऊपर There's no such a लाइन ही करेंगे. आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं. y डिफाइंड इज फॉर ऐसा ऑल है. एक्स. यस. देखिए आप कर्व को ध्यान से देखिए. दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स. दिस कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स. तो x की ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर y डिफाइंड नहीं है. x की हर एक वैल्यू पे y डिफाइंड नो है. सर. no sir, no sir. नो सर. x आप कुछ भी रख सकते हैं, y डिफाइंड है. सो द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी R. any real number. Yes. So the domain of this function will be any real number or minus infinity to infinity. और आप देख सकते हैं since y is equal to x, both are same, so the range will be same as well. So the range will be minus infinity to infinity. So the domain of this function is any real number and range of this function is any real number. Domain is set of real numbers and range is also set of real numbers. So this is the fundamental graph or of the algebraic function y is equal to x. Now second graph is y is equal to x square. Y is equal to x square. Anybody has any idea what is this? This Yes, graph sir, belongs parabola of upward Parabola. base. Yes. It's a parabola. Parabola. Parabola, sir. Correct. Parabella whose vertices is 0, 0. समझ गया मैं समझ गया. देखिए कभी भी दो वेरिएबल में अगर कर्व आता है x और y में और किसी भी एक वेरिएबल में वो क्वाड्रेटिक है का मतलब 2 डिग्री की फॉर्म में है. पावर 2. x में 2 डिग्री हो या y में 2 डिग्री हो, किसी भी एक में 2 डिग्री में अगर वो है तो डेट विल बी द पैराबोला. राइट. अब उस पैराबोला का वर्टिक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, वो एक अलग बात है. लेकिन इफ द कर्व इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल एट ए टाइम, then that curve will be parabola. So here y is equal to x square is a curve. Again there are certain points we are taking. For example, x is equal to -2, we will get y is equal to 4. X is equal to -1, if we put x is equal to -1 here, we will get y is equal to 1. If we put x is equal to 0 here, we will get y is equal to 0, and so on. So these are certain points we are taking. You can take any other points, it's completely your choice. Right? Yes, sir. Yes, sir. So this will be the graph of that parabola. अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे? पहला पॉइंट है हमारा -2,4, दूसरा पॉइंट है -1,1, तीसरा पॉइंट है 0,0, फोर्थ पॉइंट है 1,1 और फिफ्थ पॉइंट है 2,4. राइट. आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. आप 1/2 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू, y का वैल्यू 1/4 भी ले सकते हैं, सॉरी x का वैल्यू 1/4 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू -1/3 भी ले सकते हैं, -3/4 भी ले सकते हैं, +3/4 भी ले सकते हैं. सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. इन पॉइंट्स को जब 2 डायमेंशनल स्पेस में हमने ड्रॉ किया, ये x एक्सिस है,
ये y एक्सिस है and this is the intersection of these two axes which is origin 0, 0. इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो कुछ कर्व ऐसा बना एंड दिस इज कॉल्ड पैराबोला. सो यू कैन से x square y is a parabola passing through origin and it's a upside parabola, actually upward parabola. ठीक है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, ये किसकी इक्वेशन है? Parabola, sir. Parabola, sir. Parabola. Parabola. Family of Parabola. family of parabola. Upward parabola. करेक्ट. फैमिली ऑफ The left hand of it. family of upward parabolas. This is the family of upward parabolas. Because a is arbitrary constant here. You Yes, can sir. choose any value of a according to your choice. So for different values of a, you will get different values of different curves, upward parabolas. But these all curves will be concentrics. Concentrics नहीं, sorry. Yes. With same vertices, with same vertices. What is वर्टिक्स सबका सेम होगा, वर्टिक्स होगा 0, 0 और Zero. ये सारे पैराबोलाज आपके एक फैमिली के मेंबर्स होंगे. ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए इस कर्व को और मुझे बताइए कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए. Real number, sir. All the real number. करेक्ट. Minus infinity. All the real number. यस यस, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. यू कैन चूज एनी रियल नंबर. Yes, sir. Because Yes, the sir. function is defined at each and every value of real number. So the domain will be all the real numbers, or you can say minus infinity to plus infinity. ठीक है. रेंज बताइए कोई. 0 to infinity. 0 to infinity. Zero to infinity. Zero to All the infinity. real numbers. positive real numbers? Correct. Positive real numbers including 0. Yes. Positive real numbers including 0. All the real numbers including 0. All the positive real numbers including 0. क्योंकि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव भी यहाँ डालेंगे तो आपको y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी. और रेंज क्या होती है? Yes, sir. रेंज होती है y की x के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है वो, द वैल्यू ऑफ y corresponding to the value of x, corresponding to the domain. So if you are putting x is negative, you will get y positive. If you are putting x positive, you will get y positive. So always you will get y positive. So the values of y will be positive only, including 0, because if you are putting x is equal to 0, you will get y is equal to 0. Right? So the range will be Yes, sir. 0 to infinity. Yes, sir. Yes, you can see it. This is the Yes, sir. domain. This is the domain and this is the range. अच्छा, आपको ब्रैकेट्स के बारे में आइडिया है सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये होता है बोथ साइडेड क्लोज. क्लोज Yes, sir. इंटरवल बोला जाता है इसको. क्लोज्ड इंटरवल. Yes, sir. इसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच की सारी वैल्यूज इसमें आएगी, इंक्लूडिंग a एंड b. Yes, sir. This is called closed interval, and what it means? It means this interval is containing all the values in between a and b, including a and b. Second is a comma b. This is called open interval.
इसका मतलब है all the values All values except between A A and and B but not containing A and B. ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग A and B. A और B के बीच की सारी वैल्यूज आएगी, लेकिन A और B इंक्लूड नहीं होगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन. सेमी ओपन इंटरवल. सेमी ओपन मतलब इधर वाला जो होता है ना, इधर वाले के हिसाब से बोला जाता है. अगर राइट साइड वाला इंटरवल ओपन इंटरवल है तो उसे सेमी ओपन बोलेंगे, और अगर राइट साइड वाला इंटरवल क्लोज इंटरवल है तो उसे सेमी क्लोज बोलेंगे. सो दिस इज सेमी ओपन इंटरवल. इसका मतलब यह है कि ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है, और ए के बीच की सारी वैल्यूज है. दिस इज कॉल्ड सेमी क्लोज इंटरवल. इसमें ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, और ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है. इसीलिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल में लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी अचीवेबल नहीं है. माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसे हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखा जाता है. सो दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay. Third graph, y is equal to x cube. Y is equal. This is y is equal to X x cube. cube. So again, we are taking certain points of x, like x is equal to -2, we will get y is equal to -8. If we put x is equal to -1, we will get y is equal to -1. If we put x is equal to 0, we will get y is equal to 0. Similarly, for 1, we will get 1, and for 2, we will get 2. For 3, we will get 27, and so on. For 4, we will get, कितना आएगा? 64. 64, 64. 64. By 64. 4 raised to the power 4. 64. It is 4 into 4 into 64. 4 into, yeah. 64, sir. 64, sir. This is 7 or 4? ये 4 64 to the power 64 नहीं होगा सर. 64 तो 2 और 3 होता है. सॉरी सॉरी 4 4 Sir, क्यूब 4 क्यूब 4 cube होगा. Yes, Yes, sir. 64. Yes, 64 होगा, sir. ओके, ठीक है. अगर आप इन पॉइंट्स को एज ए पॉइंट 2 डायमेंशनल स्पेस में ज्वाइन कर दें तो आपको ऐसा कर्व मिलेगा, एंड इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड कर्व. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड कर्व है. आपको ये पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसे बनाया जाता है. यू शुड नो. सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. देखिए इस कर्व की खास बात देखिए आप, ये कर्व 0 से स्टार्ट होके x की वैल्यूज जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रही है वैसे वैसे इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होते जा रही है वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जा रहा है. मतलब ये है कि 0 से इन्फिनिटी की केस में ये कर्व इंक्रीजिंग है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी की केस में ये कर्व इंक्रीजिंग है, लेकिन आप एट द सेम टाइम ये भी देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 के केस में ये डिक्रीजिंग है. आप 0 इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 0 पर 0 वैल्यू ही आ रहा है.
तो आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 पर अगर x का वैल्यू रखते हैं तो ये कर्व डिक्रीज हो रहा है. So this curve is increasing in 0 to infinity and decreasing in minus infinity to 0. तो आप easily judge कर सकते हैं. Can you tell me what is the maximum value of this function? 9. Infinity. What is Infinity. Infinity. Plus infinity? infinity. Infinity. What is the minimum value of this function? Negative infinity. Infinity. minus infinity. तो आप देख सकते हैं इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा. इससे पहले वाला जो कर्व था उसके बारे में मैं एक बार बताना चाहूँगा. इस कर्व को आप ध्यान से देखिए. इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप? मैक्सिमम मिनिमम दोनों प्लस infinity. प्लस इन्फिनिटी होगा. Plus infinity. Yes, मैक्सिमम sir. मिनिमम दोनों. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? प्लस इन्फिनिटी. Plus infinity. Plus infinity. Minimum value 0. Infinity. मिनिमम Minimum value वैल्यू 0. 0. मिनिमम वैल्यू 0. यस. Okay, come to this curve again. Could anybody please tell me what is this point? 0,0. 0, 0. Origin. 0,0. Point of inflection. Yeah, 0,0 तो है ही, वो तो सबको ही नज़र आ रहा है भाई. ये 0,0 है, ये तो सबको ही नज़र आ रहा है. इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. वेरी गुड. किसने बोली ये बात? Me sir, Gaurav. गौरव. गौरव, अगर आपने ये बताया है कि दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आप ये भी बता दीजिए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट को कहते हैं? क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सर जहाँ पे ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, ना मैक्सिमा ना मिनिमा. नहीं. मैं बताऊं सर? उस point- देखिए सर ब्रेक जहाँ सर, मैं बताऊं? ब्रेक. सर जहाँ से ब्रेक करता है. सुनो. मैं जिससे पूछूं वही आंसर देगा, कोई और आंसर नहीं देगा. आप बात को समझने की कोशिश किया कीजिए. मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है. मुझे अकेले को सर जहाँ पे रुकिए गौरव. Yes. रुकिए. सर मैं बताऊं? फिर वही बात मैंने पूछा आपसे. मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा. मेरे मोबाइल में सबके नाम आ रहे हैं, डोंट वरी. देखिए गौरव, आपने पहले बोला कि पॉइंट ऑफ Yes, sir. इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसपे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होता है. ये बोला आपने. यस सर. ये आपको भी पता है, आपने गलत बोला है. पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, फिर आपकी दूसरी बात मैं सुन लूँगा. नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला जो पॉइंट होता है उसे सैडल पॉइंट Yes. कहा जाता है. क्या कहते हैं उसे? सैडल पॉइंट. मैं आगे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा. सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन का वैल्यू ना तो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है. Saddle point is the point at which the function has neither maximum value nor minimum value. ये मैं आपको जब आपके सिलेबस का मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट करवाऊंगा ना, तब डिटेल में पढ़ाऊंगा. ठीक है. अब गौरव आप कुछ बोल रहे थे, अब बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं, फिर मैं दूसरे से बात करूंगा. सर जहाँ ना पे ही जीरो कर्व को होगा अपना ना स्लोप चेंज कर ले, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, जिस पॉइंट पे. ओके, प्रिसाइजली. एनी अदर आंसर? समय है. व्हाट्स योर नेम? सर ऋषभ. ठीक है ऋषभ, बताइए. सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कर्व का सर वो पॉइंट होता है जहां सर वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा ज़रूरी नहीं है.
गौरव ने थोड़ा ठीक बताया था, लेकिन गौरव थोड़ा सा प्रिसाइजली कोई बताना चाहे तो बताइए। सर मैं बताऊं? सर या सर, डी बाई ऐसा- डी सर एक्स जहाँ साइन 0 हो चेंज जाए। हो, संकेत प्लीज टेल मी। सर डी जहाँ बाई डी से एक्स 0 हो जाए। तो जब साइन चेंज हो जाए कोई मैटर नहीं करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए। नहीं तो साइन सर मैं बताऊं सर? नो यस सर मैं आए। ये रोहित सर मैं बताऊं? रोहित सर इट इज अ मैं सर क्या मैं ये मतलब पूरा आइडिया नहीं है, गेस कर रहा हूँ। Yes. सो इट इज अ पॉइंट वेयर द कर्व मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है। मतलब यहाँ पे जैसे मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव है, तो जिस No, पॉइंट में वैसे no, चेंज हो no, रहा है no, वैसे। no. सर मैं बताऊं सर? अच्छा सुनिए आप सबके बताने से पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्योंकि आप सब लोग ये आंसर दे रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से। गौरव ने थोड़ा सही बोला था, लेकिन आप जो बोल रहे हैं बाकी लोग, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा नहीं है। देखिए मैं कर्व बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने यहाँ एक कर्व बनाया। ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है? यस सर है। तो फिर है सर। यहाँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा, नो तो फिर सर, हम बोले हाँ बताइए। सर द पॉइंट वेयर द फंक्शन मतलब जहां से कॉनकेव से कॉन्वेक्स में चेंज हो। ये बात, व्हाट्स योर नेम? सर आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अपनी कॉन्वेक्सिविटी से कॉन्केविटी की तरफ मूव करता है, या फिर कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिविटी की तरफ मूव करता है, तो जिस पॉइंट पर वो अपने इस नेचर को चेंज करता है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से पहले इस कर्व का जो नेचर था वो बेसिकली कॉन्वेक्स नेचर था, और इस पॉइंट के बाद में कर्व का जो नेचर हो गया वो कॉन्केव नेचर हो गया। तो इस पॉइंट पर फंक्शन अपने कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिविटी या फिर कॉन्वेक्सिविटी से कॉन्केविटी वाले नेचर में चेंज हो रहा है। दैट्स वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वैसे भी ध्यान रखना, मैथ्स की क्लास आप जब भी अटेंड कर रहे हो तो कॉपी और पेन साथ में रखो। ऑलवेज कीप अ पेन एंड पेपर विथ योर सेल्फ इफ यू आर टेकिंग द मैथमेटिक्स क्लास। Recording is available, no doubt, but I think you should keep a pen and paper with yourself. So point of inflection is that point at which curve is changing from convexivity to concavity और वाइस वर्सा। कॉन्वेक्सिविटी टू कॉन्केविटी एंड वाइस वर्सा। सैडल पॉइंट की डेफिनेशन भी लिख लीजिए पेन पेपर से, वैसे बाद में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच, या शॉर्टकट में लिख लीजिए, सैडल पॉइंट इज इक्वल टू नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सैडल पॉइंट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, चलिए अब फटाफट बताइए व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? रियल नंबर सर। रियल नंबर। All real Infinity numbers. to infinity. Yes, Real number, you can sir. put any value of x. So the domain is any real number. And what is range? Any R real plus number. Any real number. real number. Minus infinity to plus infinity. Yes, any real number. Absolutely correct. In fact ये ग्राफ देखने के बाद में तो आपको पता लग ही गया होगा कि आप इसकी x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, और y की कोई भी वैल्यू आ सकती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। सो द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स, और यू कैन से ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
and range is all the real numbers as well. So you can see it's a domain and it's a range. अब तक कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी हम लास्ट क्लास में जो दिया था उस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं. एनी डाउट? नो सर. No, sir. नो सर. No, sir. नो सर. सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अच्छा सा नहीं हुआ सर. क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर, थोड़ा पूरा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? पॉइंट ऑफ मतलब सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑकर किससे होता है सर? ऑकर मतलब बताया ना मैंने आपको, मैथमेटिकली पूछ रहे हैं क्या? वो तो डिफिनेशन हो गया सर. हाँ, सर ऑकर कैसे होता है मतलब? ऑकर कैसे होता है मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात. सर ये एग्जांपल के बारे में पूछ रहा है, एग्जांपल से बताइए उसको. बेटा वो मैं मैक्सिमम वही मिनिमम, तो वो तो डेफिनेशन हो गया. हाँ हाँ मैं बताऊंगा. एग्जांपल सर ये. मैं सुनिए मेरी बात. मैक्सिमम मिनिमा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बेटा, तब मैं आपको डिटेल में ये चीज़ बताऊंगा और उसमें एग्जांपल भी बताऊंगा, मैथमेटिकली भी बताऊंगा. क्योंकि कॉन्वेक्सिविटी से जब कॉन्केविटी में चेंज होता है या कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिविटी में चेंज होता है तो मैथमेटिकली भी उसका कुछ होता है. मतलब ये है, जब कर्व का कोई पॉइंट मैक्सिमा होता है तो हम बोलते हैं, कर्व का कोई पॉइंट मैक्सिमा होता है तो हम बोलते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पर वो नेगेटिव होना चाहिए. मिनिमम Yes, होता है sir. तो हम ये बोलते हैं कि सेकेंड Yes, ऑर्डर sir. डेरिवेटिव Greater than 0. वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. अब ये लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो ही क्यों होना चाहिए, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में. मैं पूरा ग्राफ से ये समझाऊंगा कि ये लेस देन जीरो ही क्यों आया मैक्सिमा के केस में, ये ग्रेटर देन जीरो ही क्यों आया मिनिमा के केस में. ठीक है. और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में क्या होता है, d2y अपॉन dx2 ये ज़ीरो हो जाता है और d3y अपॉन dx3 ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है ये अभी बता दूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा ना मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर पढ़ने का. तो उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और ग्राफ से बताऊंगा आपको कि ऐसा ही क्यों होता है, ये सारी कंडीशंस ही क्यों आती है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसे ज़ीरो करके हम स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा. सर. यस, सेटिस्फाइड? सर वन. यस. ओके सर. सर मेरी स्क्रीन पे आपको वेबकैम में एक ब्रैकेट दिख रहा होगा, इसे क्या होते हैं सर? क्या बोल रहे हो? हाँ, सर मेरे कैमरे पे हाँ. कोई ब्रैकेट दिख रहा है, इसे क्या होते हैं सर? इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं बेटा. और ये जो है इंटरवल के काम नहीं आता है, ये इंटरवल के काम नहीं आता है. जस्ट अ सेकेंड. तो सर ये एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड. देखिए ये ब्रैकेट जो होता है ना, ये देखिए एक सेकेंड. हाँ, आप इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं ना, जैसे यस सर. 3 to 5 है. तो बेटा ये कर्ली ब्रैकेट होता है, ये इंटरवल में काम नहीं आता है. इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं बस वही होंगे, इनके बीच का पॉइंट नहीं होगा. 3 और 5 ही होंगे. 3 और 5 के बीच के जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो नहीं होंगे इसमें. यस सर. तो ये कर्ली ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ जो विजिबल पॉइंट्स होते हैं उनको सेट फॉर्म में लिखने के काम आता है. ओके सर. एनी अदर डाउट, एनीबॉडी? No, sir. सर हमारा टेस्ट क्यों नहीं हो पाता है जब हम अटेंड करते हैं तो? भाई वो आपने कल ट्रेनिंग क्लास ली होगी ना IMCRP की. सर आज है. नहीं सर, आज है. आज है. हाँ आज ले लेना. आज है सर. शायद अरे अरे मैं 10-15. समझ गया. तो आज जो भी प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व कर लेना. ठीक है. अब मेरी बात Yes. हाँ, अब मुझे लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बताता हूँ आपको. देखिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि
अगर 100 मीटर का डिस्टेंस है और आप सीधे सीधे चल रहे हैं, आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर आप 10 मीटर के डिस्टेंस को 1 सेकंड में कवर करते हैं तो फिर आप उस डिस्टेंस को कितने मिनट में या कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे? दिस वाज द क्वेश्चन। मैथमेटिक्स ये कहती है, यस सर, मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप अपनी पूरी लाइफ में उस 100 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाओगे। आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी लेकिन आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। ये मैथमेटिक्स कहती है और मैं इसे प्रूफ भी कर सकता हूं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। सर, Yes, sir. आई कैन प्रूव इट। Yes. आई कैन प्रूव इट। कैसे? देखिए, इफ यू वांट टू कवर 100 मीटर डिस्टेंस, अच्छा हमारा टाइम 10:15 बज गए हैं, नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके रखता हूँ और कल इस क्लास का आंसर देता हूँ, कल इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कल की क्लास में। तब तक आप सोचिए कि सर ने ऐसा क्यों बोला कि इस डिस्टेंस को हम कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते, पूरी लाइफ निकल जाएगी। थिंक अबाउट इट। Sir, So, can you repeat the question as it is my first class? sir, I had messaged you one answer. This is the question was the simple question. 100 मीटर का डिस्टेंस है, यू हैव 100 मीटर डिस्टेंस, आपको Okay, sir. सीधे सीधे चलना है, आपको डायगोनली नहीं चलना है और आपकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। पहला कदम आप जिस वेलोसिटी जिस टाइम पे रखोगे उसी टाइम पे आप सेकंड कदम रखोगे। इफ यू कवर 10 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, Okay. if you cover 10 meter distance in 1 second, then how much time you will take to cover the whole distance? Okay, sir. तो मैंने जो आंसर दिया उसके बारे में आप सोचना। velocity? What, ईशा? Sir, acceleration is constant or the velocity is constant? Both are constant. There is no change. आप जैसा जैसा चल रहे हो वैसे वैसे चलना है। No But change. sir, अगर acceleration अगर constant है तो velocity तो change ही होती रहेगी ना? देखिए, हाँ सर, देखिए मुझे फिजिक्स का इतना आइडिया नहीं है। मैं सिंपल सी बात आपको ये समझा देता हूँ कि आप जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे चलना है। मतलब आपने फर्स्ट स्टेप जो रखा, सेकंड स्टेप भी वही रखना है, थर्ड स्टेप भी वही रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट स्टेप आपने तेज रख दिया, सेकंड स्टेप आपने धीमा रखा, पहले आप शुरू में भाग गए फिर आपने स्लो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म चलना है और सीधे चलना है। नो एक्सेलरेशन। हाँ, जो भी है। एनीवेज, थिंक अबाउट इट एंड वी Sir. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। सर मैंने आपको Yes, मैसेज किया sir. था। हाँ रोहित, And- नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है आपका। ओके सर पिछले Okay, sir. क्लास की Thank you, नोट्स sir. अपलोड करना सर क्लासरूम में। हाँ मैं कर दूंगा। मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया है, अभी वापस देख लीजिए आप चैट बॉक्स में। जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है इस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू हैव अ गुड डे। Thank you, sir.